ठीक है चलो देखते हैं। मंडे लास्ट है ना, ट्यूसडे किसी को नहीं ट्रेन आईटी नहीं है ना किसी का। होमवर्क किया? Okay, let's wind up with bonus and rights issue today. Tell me one thing. What is bonus? Bonus shares क्या होता है? याद है last class we did learn about bonus. What are bonus shares? They are nothing but free shares. How come company can give free shares to the shareholders? हवा में से तो दे नहीं सकता है, पैसा लिया नहीं है, तो कहाँ से दिया उसने? Out of reserve, yeah. So bonus is nothing but basically capitalization of reserve. Is it clear? What do you mean by capitalization of reserve? The reserve gets converted to a capital. Sorry. You reduce your reserves and you increase your share capital. So is giving bonus a good sign or a bad sign for a company? Good sign. Because a company which makes thorough profits, continuous profits, good profits, only those companies can issue bonus shares. Obviously things are. And how is it beneficial to the company for giving bonus? Cash. Cash gets conserved, right? Cash is not lent out to the shareholders, right? Cash remains in the company. That's the best thing that happens to the company. Cash remains. And how is it beneficial to the shareholders? Equity shares they get free of cost. So what's the use? They are not getting money. They can sell it. There are two options. They can retain the shares. They can sell it, right? And what happens to the market price when the bonus shares are given? Sir, for a certain period of time it falls. It falls. Obviously it falls. If the supply of shares increases, the market price of shares always falls. So for example, एक शेयर का प्राइस 400 रुपए चल रहा है और उसने 1:1 का बोनस दे दिया, तो एक शेयर पे एक शेयर फ्री दे दिया, करीब 200 हो जाएगा उसका, करीब 200 रुपया भाव हो जाएगा शॉर्ट टर्म में. But then it's a good profit making company, so gradually the EPS increases and the share price also increases. Earning per share also increases and share price. Share price follow this one thing, that is the earnings, the profits of the company. The profits are keeping on growing, the company का profits बढ़ रहा है, sales बढ़ रहा है, revenue बढ़ रहा है, growth हो रहा है. Share price बढ़ने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता. It's as simple as that. Temporary fluctuations are all due to news. They are all news, political news, global news, oil का news, war का news, फलाना ढिमका news. These are all temporary blips in the share price. In the long run, always the share price just follows one thing, that is what? Profits. Profits and growth of the company. That's it. Business अच्छा है, price बढ़ेगा. Business खराब है, price घटेगा. As simple as that. Okay. Now, there was one sum for homework, I think, right? Which one I gave? Sixth sum. Did you get that sixth sum? There was an order of reserve. You guys remember order of reserve for bonus? CR. What is CR? Capital Redemption Reserve. What is SP? Securities Premium. What is CR? Capital Reserve. But everything should be received in cash. Everything should be earned in cash. That is the main thing. Okay. And last में free reserve. Free reserve you can take in any order. Free reserve मतलब freely available for anything. PNL, general reserve, whatever. ये ऊपर वाले थिंग का पर्पस स्पेसिफिक है, मैं आपको बताऊंगा जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे तब. So CRR, SP, CR, that is for fully paid shares given as bonus. There is one more bonus where you can give partly paid up shares to fully paid up का bonus. Remember that final call you can convert. That final call you can convert into what? Bonus. And for that you can utilize what? You can't utilize two things for partly paid up to fully paid. CRR and securities.
You can use capital reserve received in cash and you can utilize free reserves. Remember? The CRR or securities premium you can't use for conversion of partly paid up shares to fully paid up. What is conversion of partly paid up to fully paid up? You guys remember? जो फाइनल कॉल होता है उसको फ्री कर देते हैं, 2 रुपया 3 रुपया फ्री में दे देते हैं. वो बोनस बहुत रेयर चीज है आज के जमाने में, क्योंकि पार्ट में पैसा मांगते ही नहीं है. आज के जमाने में मोस्टली जो शेयर्स बोनस में आते हैं फुल्ली पेड शेयर्स बोनस में आता है, और मेजॉरिटी यूटिलाइजेशन सीआरआर का होता है. सीआरआर के आपको समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो ये आपने किया था. सिक्स्थ सम मैंने होमवर्क दिया था, आया आपको सिक्स्थ सम? सिक्स्थ सम में क्या था? द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस है. 1:3 का रेशियो था. आई थिंक 4500 शेयर्स है, 1500 शेयर्स का बोनस आएगा. 100 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख का बोनस है. यू कैन यूटिलाइज 70,000 फ्रॉम सीआरआर and you can take either 1 lakh, sorry, you can take 80,000 out of general reserve, या फिर आप PNL में से 65 और sorry security premium लिए तो 70, 40 and remaining 40 you can take it either from general reserve or PNL. So आपके 2 एंट्रीज होंगे कि 3? 2. पहला एंट्री होना चाहिए CRR डेबिट 70,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 40,000, general reserve या PNL debit 40,000 to bonus to shareholder, that is for bonus declared, and then bonus to shareholder to equity share capital, that is 1,50,000. Is that clear? 2 entries you have got, right? Sorted है, सबको मिला? चलिए अभी आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं. राइट्स इश्यू सीखेंगे. सम्स दोनों में करने वाले, बोनस एज वेल एज राइट्स इश्यू. बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ना है. जिस समय बैलेंस शीट है प्लीज लीव अ साइड फॉर बैलेंस शीट. अगर नहीं छोड़ा तो लास्ट में नंबर देना पड़ेगा. साइड छोड़ के रखना बैलेंस शीट का. अब जाते हैं हम लोग राइट्स इश्यू पे. तो व्हाट इज द राइट इश्यू? नाउ बोनस आपने सीखा. बोनस क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स होता है, बराबर है. व्हाट इज द राइट इश्यू? यू नो व्हाट इज अ पब्लिक इश्यू? पब्लिक इश्यू में क्या होता है? आईपीओ में क्या होता है? पब्लिक से पैसा लेता है. क्या लेता है उसको रिटर्न में? शेयर. आप सब लोग मेरे शेयर होल्डर हो. आपने मेरा आईपीओ सब्सक्राइब किया तो यू गॉट पार्ट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. यू गॉट द नंबर ऑफ शेयर्स. somebody got 500 shares, 1000 shares, 2000 shares, 5000 shares. They are all my shareholders and you all have given me the money, right? That is the capital. That is what happens in the IPO. Bank to share capital. Bank to share capital. बैंक asset बढ़ा और share capital ओनर का पैसा बढ़ गया. What is a rights issue now? Rights issue क्या होता है? The company needs some money now. It needs some money for further expansion. उसने एक बार तो IPO लाया है already. अब जो अच्छा कंपनी होता है ना, वो घड़ी घड़ी पैसे मांगता नहीं है शेयर होल्डर. मैंने बहुत बार बोला है. अच्छा कंपनी जो होता है वो अपना प्रॉफिट से ग्रो हो जाता है. आगे जाके वही प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करके ग्रो होता है. बट कोई कारण से उसके प्रॉफिट शायद कम है, या कोई कारण से उसको और पैसे की जरूरत है फॉर एक्सपेंशन, और पैसे उसको रेस करने हैं. ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? सपोज ऑलरेडी उस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किया हुआ है 10 रुपए का, तो 10 लाख का उसका कैपिटल ऑलरेडी पड़ा हुआ है. ठीक है, उसको और पैसे की जरूरत है. तो अब वो घड़ी घड़ी ऐसे इश्यू नहीं ला सकता. वो एफपीओ बोलते हैं उसको, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, लेकिन वो घड़ी घड़ी नहीं ला सकता कि भाई ये 1 लाख शेयर्स तो मैंने इश्यू कर दिया, और थोड़े टाइम बाद और 50,000 शेयर्स मैं पब्लिक में इश्यू करूंगा और पैसे रेज करूंगा, और 40,000 शेयर्स इश्यू करूंगा और पैसे रेज करूंगा, और 2 लाख शेयर्स इश्यू करूंगा और पैसे रेज करूंगा. ऐसे घड़ी घड़ी करते गए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बुरा मान जाएंगे. शेयर का प्राइस भी गिर जाएगा, वो तो है ही, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल भी जा रहा है कंपनी में से, क्योंकि वो हैज द अल्टीमेट वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर. तो जो पहले उनको 1 लाख शेयर होल्डर के पास जो वोटिंग राइट्स थे, वो भी समझो कंपनी में शेयर्स बढ़ के 2 लाख हो गए, तो 2 लाख के पास वोटिंग राइट चला जाएगा. तो इनका शेयर ऑफ वोटिंग राइट ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा. तो इनका से भी इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी चला जाएगा. तो ऐसा कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिना बताए नया शेयर इश्यू नहीं कर सकता. उनका परमिशन होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए, फिर आप आगे जाके नए शेयर होल्डर से पैसा रेज कर सकते हो. बट ऐसा ना हो
इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट में, एक आप पढ़ोगे तो उधर आएगा शेड्यूल 39 में। तो उधर वो लोग ने बोला है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इनजस्टिस ना हो। कंपनी को पैसे तो चाहिए, पैसे रेज करने हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है एक्सपेंशन के लिए, पैसे रेज करने हैं। दो तरीके पैसे रेज करने के, या तो शेयर से करो या तो लोन लो, या तो बोरोड फंड लो या तो शेयर कैपिटल रेज करो, दो ही रास्ते होते हैं। लोन लेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है, इंटरेस्ट बर्डन रहता है। शेयर्स रेज किया तो इंटरेस्ट बर्डन नहीं रहता है। डिविडेंड इज ऑप्शनल, प्रॉफिट किया तो डिविडेंड देगा, पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिविडेंड नहीं भी दिया तो चलता है, देना चाहिए फॉर कीपिंग द शेयर होल्डर्स हैप्पी, बट कंपल्शन नहीं है। तो अगर उसको शेयर से पैसा रेज करना है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए प्रोविजन डाला गया इंडियन कंपनीज एक्ट में। क्या है ये, तो कंपनी कैन गो फॉर अ राइट इश्यू, कंपनी कैन गो फॉर अ राइट इश्यू। राइट इश्यू का मतलब क्या कि अगर 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी कंपनी में है और उसको समझो 20,000 और शेयर्स रेज करना है, 20,000 शेयर्स, ये तो फेस वैल्यू है। मार्केट में समझो शेयर का भाव चल रहा है 50 रुपया, मार्केट में शेयर का भाव चल रहा है 50 रुपया, ये फेस वैल्यू था। 1 लाख शेयर्स था, उसने ट्रेड कर लिया मार्केट में 50 रुपया, प्रॉफिट की वजह से बढ़ के हो गया। अभी उसको 20,000 शेयर्स पे और पैसा रेज करना है, 20,000 शेयर्स पे, ओके। तो वो राइट इश्यू ला सकता है। राइट इश्यू में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है राइट्स कि आप लोगों को क्या ये 20,000 शेयर्स खरीदने हैं, पहला प्रेफरेंस आप लोगों को है, बाहर वालों को नहीं है। आप लोग खरीदना चाहते हो तो आप ही खरीद लो। तो जैसे बोनस आता है इन द रेशियो ऑफ 1:5, 1:4, 1:1, वैसे राइट्स का ऑफर आता है इन द रेशियो ऑफ 1:5, 1:4, 1:1। फर्क सिर्फ इतना है कि बोनस में आपको शेयर्स फ्री में मिल जाते हैं, शेयर होल्डर गेट शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। राइट्स में शेयर्स फ्री में नहीं मिलते हैं, तो साला खरीदेगा क्यों, मार्केट में तो 50 रुपए में, तो मार्केट में खरीदेगा, मार्केट से खरीद सकता है। मैं जब जाऊं मार्केट प्राइस तो चालू ही है, whatever I want I can buy the shares from the market. So to incentivize the shareholders, the rights का price will be below the market price, say maybe 30 rupees. Existing shareholder को ये shares offer किए जाते हैं मार्केट प्राइस से कम प्राइस, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ऑफर किए जाते हैं। पैसे को, कंपनी को पैसा रेज करना, कंपनी को पैसे से मतलब है, उसको जितना भी कैपिटल चाहिए रहेगा 20,000 into 30, कितना होता है 20,000 into 30, 6 लाख रुपए, उसको 6 लाख रुपया चाहिए। वो देखेगा मार्केट प्राइस चल रहा है 50, वो 30 में ऑफर कर देगा 20,000 शेयर्स, या 20 में ऑफर कर देगा 30,000 शेयर्स, या 40 में ऑफर कर देगा 15,000 शेयर्स, उसको 6 लाख रुपए से मतलब है। वो मार्केट भाव से कम प्राइस में राइट्स ऑफर कर देगा। किसको करेगा, पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अ राइट फॉर देम, इट्स नॉट अ ड्यूटी, इट्स अ राइट फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कि वेदर दे वांट टू बाय दोस शेयर्स और नॉट टू बाय दोस शेयर्स, देयर विश। अगर दे बाय दोस शेयर्स then they will pay how much, 20,000 into 30, 6 lakhs to the company, and existing shareholders themselves will get these 20,000 shares. No doubt the number of shares will increase, number of shares बढ़ेगा, मार्केट में भाव घटेगा क्योंकि 20% शेयर्स बढ़ गया है, तो मार्केट में कुछ आएगा डंपिंग, तो शेयर प्राइस घटने वाला है मार्केट में, नो डाउट। But control of the company will not go to anyone else. Control of the company will be in the hands of existing shareholders. सबको 1:5 के रेशियो में मिल रहा है, तो जिसके पास 10 शेयर थे उसके पास 12 हो जाएंगे। अगर उसने सारे खरीदे तो 10 थे तो 12 हो जाएंगे, 100 थे तो 120 हो जाएंगे, 200 थे तो 240 हो जाएंगे, 1000 थे तो 1200 हो जाएंगे। ओवरऑल कंट्रोल जो रहेगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ही रहेगा, वो डिस्पर्स नहीं होगा बाहर वालों के बीच में। तो क्या सीखना है यहाँ पे कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब बाहर वालों से पैसा रेज करने के बदले पहला प्रेफरेंस वो हमेशा किसको देता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। डायरेक्टली बाहर वाले से पैसा रेज नहीं किया जाता, वो भी कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन एग्जिस्टिंग का परमिशन रहा तो। एग्जिस्टिंग का परमिशन, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज डोंट गो फॉर डायरेक्ट एफपीओ, दे गो फॉर अ राइट इश्यू। राइट इश्यू में क्या होता है,
पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उनको बोला जाता है देखो कंपनी को पैसे की जरूरत है, आपको राइट्स ऑफरिंग की जा रही है, मार्केट में भाव 50 रुपए है, आपको 30 रुपए में दिया जा रहा है, आपको खरीदना है क्या? आपको खरीदना है क्या? तो इसको 200 शेयर्स ऑफर हुए, इसने बोला हाँ मैं खरीद लूं। इसको 500 शेयर ऑफर हुए, हाँ मैं खरीद लिया, तो ही विल गिव 30 रुपीज टू द कंपनी, ही विल बिकम द शेयर होल्डर फॉर द रिमेनिंग शेयर। कोई बोलेगा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है, मेरे को नहीं खरीदना है। तो एक और ऑप्शन होता है आपके पास, इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? रिनाउंसिएशन। व्हाट इज रिनाउंसिएशन? वो बढ़िया दिमाग लगाएगा। वो क्या करेगा? सोचेगा यार मेरे पास तो पैसा है नहीं, लेकिन मुझे ये शेयर कितने में ऑफर किए जा रहे हैं? 30 में, और मार्केट में भाव क्या चल रहा है? 50। नो डाउट राइट्स के बाद थोड़ा भाव घटेगा, डंपिंग आएगा, शेयर्स बढ़ेगा तो भाव घटेगा, तो राइट के आने के बाद शायद भाव 45 हो जाएगा मार्केट में, ठीक है ना? तो भी व्हाट आई कैन डू, यू नो, मैं फटाक से किसी बकरे को पकड़ेगा, आउटसाइडर को, हु इज नॉट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है? एग्जिस्टिंग सबके पास तो है ही, मैं किसी आउटसाइडर को पकड़ेगा, उसको बोलेगा देख मेरे को राइट ऑफरिंग आया है, आर यू इंटरेस्टेड? मैं उससे पैसा लेगा, 30 में खरीदेगा और 45 में उसको बेच देगा, या 44 में उसको बेच देगा, 43 में उसको बेच देगा, मेरा तो बैठे बैठे नफा हो गया। और वो भी खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा मेरे से 43 या 44 में, क्योंकि मार्केट में 45-46 का भाव चल रहा है, उसको तो बैठे बैठे 2-3 रुपया कमाने का है, उसका भी प्रॉफिट हो रहा है, मेरा भी प्रॉफिट हो रहा है, वी आर बोथ इन विन विन सिचुएशन। वंस अगेन आई विल रिपीट, 50 का भाव था मार्केट में, राइट्स इशू आने के बाद क्योंकि शेयर्स बढ़ने वाले हैं, सभी लोग अगर राइट्स खरीद लेते हैं तो मार्केट प्राइस घट के अराउंड 45 हो जाएगा, लेकिन मेरे को राइट्स कितने में मिल रहा है? 30 में। मैं भी सारे के सारे 30 में खरीद के 45 में बेच ही सकता हूं मार्केट में, नॉट अ प्रॉब्लम, कि भाव वही चल रहा है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करेगा, किसी दूसरे को पकड़ेगा और उसको बोलेगा देखिए अपॉर्चुनिटी है, तो पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, उसके पैसे से मैं लेके उसी को बेच देगा। मतलब उसने मेरे से कितने में लिया? 30 का शेयर कितने में लिया? देखो 42, 43, 44 में ले लेगा, और फिर उसका मर्जी, उसको होल्ड करना है तो होल्ड करे, 45, 46 में बेच के निकलना है तो निकल भी सकता है, उसका जो भी 1-2 रुपया प्रॉफिट ही होगा। और नुकसान तो है नहीं ना, आपको वही बात दिमाग में, मेरे को 30 में मिल रहा है, मैं 30 में लेके 42 में बेचूं, मेरा 12 रुपया प्रॉफिट। सपोज 100 शेयर है तो 1200 रुपया तो जेब में आ गया, बिना जीरो इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट है। अभी उसकी मर्जी, उसको मार्केट में शेयर बेचना है बेचे, अपने पास रखना है अपने पास रखे, उसका भी तो फायदा है। समझ में आया इसका मतलब? बोल। कंपनी ने तो 13 महिला है, कंपनी ने 13 बैठा, कंपनी ने 13 बैठा છે, મેં 30 આપી દીધા કંપનીને, મારું કામ પતી ગયું। ઈ 30 ના શેર્સ મેં લઈને એને કેટલામાં વેચ્યા? 44 માં। મારા પૈસા ફ્રી થઈ ગયા। तुमने जैसे किया था टिकट्स, कोल्ड प्ले, नहीं बेचा, कोल्ड प्ले का टिकट 10,000 का था एमआरपी, तुमने लिया 10,000 में, बाहर डिमांड आ रही थी, तुमने चिपका दिया 15,000 में, तुम निकल गए। कोल्ड प्ले को तो 10,000 ही मिले ना, तुमने वही किया, रिनाउंसिएशन बोलते हैं इसको, तुमने टिकट का रिनाउंसिएशन किया, इसने राइट शेयर्स का रिनाउंसिएशन किया, सेम कंसेप्ट। समझ में आया? तो तुमने 10 का शेयर, तुमको जाना नहीं था, अगर तुमको जाना है कोल्ड प्ले तो तुम खुद 10,000 की टिकट लेके तुम चले जाते। तुमने बोला यार मेरे पास तो 2 टिकट है, एक में मैं खुद चले जाता हूँ, एक में किसी को चिपका देता हूँ, तो 10 का तुमने 15,000 में बेच दिया, वो भी राजी खुशी चला गया क्योंकि उसको टिकट नहीं मिल रही थी, और बाहर टिकट 20,000 की हो गई होगी या 25,000 की हो गई होगी। तो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन द राइट्स। तुम खरीद के खुद नहीं रखोगे, तुम सीधा घुमा दो, किसी और को चिपका दो बार बार। तो कंपनी को तो पैसे से मतलब है, कंपनी को राइट शेयर्स मिल गया, तुमने उसको रिनाउंस कर दिया, ठीक है। रिनाउंस करने के बाद क्या होगा? यू आर नो मोर द शेयर होल्डर, दैट न्यू गाय विल बिकम द शेयर होल्डर फॉर दोज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। थोड़ा डिस्पर्स होने वाला है वोटिंग राइट्स, कोई चॉइस नहीं है, बट वो राइट दिया गया है, शेयर होल्डर के पास वो राइट है। तो जब भी राइट इशू कंपनी से ऑफरिंग में आता है, आपके पास 2 चॉइसेस है। नंबर 1, आइदर बाय दोज शेयर्स,
give the money, buy those shares, keep it with you. If you want to sell, you can sell. If you want to keep, you can keep. If you don't have sufficient funding, you can always do what? Renunciation. Renunciation means what? Immediately buy and dispose of. Immediately buy and dispose of at a profit. That सामने वाला बकरा will also buy from you. Why? इसका मार्केट प्राइस में उसको जो प्राइस में मिल रहा है वो इससे कम है, तो बेच के और प्रॉफिट करके निकल सकता है. बराबर? આમાં બોનસમાં બંનેમાં રિસ્ક બી છે ને, અગર પછી પ્રોફિટ્સ ના થયા અને That is a वो रिस्क रहता ही है. आगे जाके प्रॉफिट्स नहीं हुआ. देखो बिजनेस अगर स्ट्रांग है, उसका हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है, तो चांसेस आर गुड कि आगे जाके भी प्रॉफिट्स होगा, बोनस के बाद भी प्रॉफिट होगा, राइट के बाद भी प्रॉफिट होगा. वो तो तुमको स्टडी करके रिसर्च करके जाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इट इज. जितना सेफ इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें रिटर्न्स भी थोड़ा कम है, जितना स्टडी करके अच्छे से इन्वेस्ट करोगे उसमें रिटर्न्स थोड़ा ज्यादा. प्रोबेबिलिटी इज दैट अच्छा कंपनी, अभी रिलायंस जैसा कंपनी राइट्स इशू लेके आता है, तो ऐसा तो मैं नहीं सोचा कि लॉस होगा और चला जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया वापर रहा है रिलायंस का माल, इंडिया तो वापर ही रहा है. बढ़ेगा आगे जाके, ग्रोथ होकर प्रॉफिट होने का चांस है. सपोज अगर 1:5 का रेशियो है और किसी के पास 5 शेयर है, तो वो एक ही खरीद सकता है कि ज्यादा? एक ही राइट्स में मिलेगा उसको. राइट्स का ऑफर एक का ही मिलेगा उसको. उसके पास 5 शेयर है ना, he'll get 1 राइट शेयर, दैट्स इट. बाकी उसको और इंटरेस्ट है खरीदने का, तो दूसरे किसी का रिनंसिएशन हो रहा है तो वो ले सकता है वाया रिनंसिएशन. लेकिन वो भाव उसको ये भाव में नहीं मिलेगा, उसको ऑलमोस्ट 45 के आजू बाजू का भाव मिलेगा, 42 43, तो मलाई कम हो जाएगा. और अगर किसी ने नहीं लिया तो फिर तो कंपनी को कम पैसा मिलेगा ना. हाँ, तो ये थर्ड ऑप्शन है. कुछ गधे लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ ही देते हैं. तो छोड़ना तो फालतूगिरी ही हुआ. या तो तुम खरीदो या तो रिनंस करो. रिनंस में बैठे बैठे मलाई मिल रहा है ना, प्रॉफिट. क्या बुरा है? समझ में आ रहा है आपको? छोड़ ही देना राइट्स को, ये सही है कि गलत है? गलत है. लेकिन छूट गया, किसी ने छोड़ ही दिया, तो उतना पैसा कम मिलेगा कंपनी को. तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा कि क्या बेस्ट इंटरेस्ट में है, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ले रहा है क्या शेयर्स, नहीं ले रहा है तो फिर कैंसिल करके रख देगा. जितना मिला उतना लेके आगे बढ़ेगा. ऐसा है. इसमें कोई आईपीओ जैसा कंडीशन नहीं है, जितना मिला उतना. आउटसाइडर को इश्यू नहीं कर सकता. वही तो मैं बोला, आउटसाइडर को नहीं कर कर सकता है. प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आउटसाइडर को, कंपनी को अगर कम पैसा मिले प्राइवेट प्लेसमेंट कर देगा आउटसाइडर. 30 में करेगा कि मार्केट प्राइस? वो फिर डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. वो देखेगा क्या कैपिटल है, कितना है, क्या प्राइस है, वो बाद में डिसाइड करेगा. नॉट नेसेसरली एट 30, दे मे गिव एट अ हायर प्राइस. ये तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको ऑफर है 30 का, बाहर वालों को ज्यादा भी चार्ज कर सकता है. बट ऐसा जनरली सिचुएशन इज वेरी रेयर कि कुछ भी नहीं किया शेयर होल्डर. कोई भी शार्प बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है, या तो वो राइट्स खरीदेगा या तो वो रिनंस करेगा. दोनों में फायदा ही होगा उसका. बात समझ में आई? अभी राइट्स के केस में कंपनी का बुक में क्या एंट्री होगा, तो बहुत सिंपल है. इट इज लाइक फ्रेश इश्यू. इट इज लाइक, तो इधर क्या हुआ, 20,000 शेयर सब वो सबने खरीद लिए राइट्स. बाहर वाले ने भी खरीदे कि कंपनी ने खरीदे? कंपनी को तो 30 रुपीज ही मिल रहा है. समझ में आ रहा है आपको? रिनंस करे शेयर होल्डर या फिर खरीद ले राइट्स. हाउ मच मनी विल द कंपनी गेट? 30 रुपीज. तो इमेजिन करो 20,000 शेयर 10 रुपए का 30 रुपए में आया, तो व्हाट इज 20? फेस वैल्यू वाज 10, इश्यू प्राइस वाज 30, 20 is premium. So what entry will the company pass in its books? Issue किया शेयर्स और पैसा आ गया. Bank to share capital to premium. Bank to share capital to premium. That's the simple entry of rights. कंपनी को शेयर्स इश्यू करके पैसा मिला. खाली फर्क क्या है, नॉर्मल पब्लिक इश्यू और राइट्स इश्यू में फर्क समझा? नॉर्मल में आप सभी लोगों को सेम प्राइस पे इश्यू कर देते हो. राइट्स में आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करते हो कम प्राइस में. देखो खरीदने का है तो खरीद, देखो रिनंस करने का है रिनंस कर, तो छोड़ देगा तो फिर डिस्पोज ऑफ या हायर प्राइस, व्हाटएवर इज द सिचुएशन. इज दिस क्लियर? तो जनरली पीपल आइदर बाय और दे रिनंस इट. रिनंसिएशन का मतलब समझा? खरीद के तुरंत टोपी घुमा दिया. कंपनी के बुक में क्या एंट्री आएगा? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर. Bank to equity share capital to share premium. At what price? 30. Rights का price. Is it clear? Company is not going to get 50. Company is not going to get 45. What is company going to get? 30 rupees. Is this clear? What is 50 rupees?
existing market price. What is 45 rupees after? इसको X right price बोलते हैं, X right. इसको कम right price बोलते हैं, इसको X right. This is कम right is cumulative of right, X right is exclusive of right. ऐसे कम बोनस X bonus होता है, ऐसे कम right X right. So before the right issue the price is 50. After the right issue the price is 45 because the supply has increased, so the price will fall थोड़ा सा. Okay? तो जो शाना बंदा है वो 30 में खरीद के तुरंत 40, 42, 43 में डिस्पोज कर देगा, उसका भी प्रॉफिट सामने वाले का भी. Is it clear? अभी इस चैप्टर में जर्नल एंट्री बहुत रेयरली पूछा जाता है इस पार्ट में राइट से, क्योंकि एंट्री बहुत चिंदी है. एंट्री में क्या है, कुछ है ही नहीं. व्हाट इज एंट्री? बैंक, शेयर कैपिटल, कुछ नहीं. इवन इजियर देन 12th स्टैंडर्ड. So what they ask you is this malai. Find out this malai, this profit of renunciation. Find out the value of right. इसको बोलते हैं value of right. Okay? तो value of right आपको ढूंढने बोला जाएगा. तो वो कैसे सॉल्व करना है, वो वर्किंग नोट के जैसा ही होगा. एग्जाम्पल के साथ I'll explain. See, all of you look at some number. Sum number 5. સર આજે તમે કેટલી મતલબ ઉપરના 15 રૂપિયા સાથે જે ભાઈએ વેચ્યું તો એનાથી કંપનીને શું ફરક પડે? શેર હોલ્ડર તમને એઝ એન ઇન્વેસ્ટર ફરક પડે ને, તમારા માટે સમ્સ માટે છે. બંને આવશે, કંપનીની એન્ટ્રીઝ પણ આવશે અને આ વેલ્યુ ઓફ રાઇટ પણ આવશે ફॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दोनों पूछता है बट वो इतना नहीं पूछता है क्योंकि उसमें कुछ मसाला है. चलो क्वेश्चन 5 देखो, रीड क्वेश्चन 5. A company offers new shares of 100 each at 25% premium to the existing shareholders on 1-for-4 basis. A company offers new share of 100 each at 25% premium on 1 share for 4 basis. इसका मतलब 1:4 के रेशियो में क्या है, राइट्स है, बराबर है. ऑफर्स, ऑफर्स मतलब खरीदने का ऑफर है, तो राइट है, बोनस नहीं है वो राइट है. मतलब 125 हुआ प्राइस, तो ऑफर प्राइस क्या है राइट का 125. The come right price of the share is 150. What is come right price? Market price. So existing market price of the share is how much? 150. But the shareholders are getting this offer at what price? 125. तो ये हमारे एग्जांपल में जो 50 और 30 था, वो यहाँ पे 150 और 125. Calculate the value of the right. Calculate the value of the right and what should be the X right price of the share. तो आपको पूछा गया कि भाई राइट इश्यू आने के बाद क्या लगता है मार्केट प्राइस क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्स राइट. एक्स राइट प्राइस वो ढूंढो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर. वो एक्स राइट प्राइस आ जाएगी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा. तो अभी पहले इसका एक फॉर्मूला है. वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला इज सम नंबर 5. वैल्यू ऑफ अ राइट पर शेयर, इधर ऐसे लिखना, वैल्यू ऑफ अ राइट पर शेयर इज इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस. ये लिख के रख दो. वैल्यू ऑफ अ राइट पर शेयर इज इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस. बता दो सब एक्सप्लेन करो. वैल्यू ऑफ अ राइट पर शेयर इज इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट. वैल्यू मतलब क्या, कि वो जो रिनाउंस करते हो ना, रिनाउंसिएशन का मतलब समझा, आपने खरीद के तुरंत बेच दिया, उसका प्रॉफिट. दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ अ राइट. दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ अ राइट पर शेयर इज इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस. ओके, कम राइट प्राइस का मतलब जो प्रेवेलेंट मार्केट प्राइस है 150 रुपया. एक्स राइट प्राइस मतलब वो 125 दिया एक्स राइट प्राइस,
125 तो ऑफर प्राइस, एक्स राइट प्राइस हम ढूंढेंगे। व्हाट इज एक्स राइट? आफ्टर द राइट जो भाव हो जाएगा मार्केट में, ओके। अब ये भाव एक्चुअली मार्केट में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये थियोरेटिकल प्राइस है, इसको टर्प भी बोलते हैं। टर्प स्टैंड्स फॉर थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ये टर्प बोलते हैं, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ओके। टर्प अभी एक्स राइट प्राइस आपको ढूंढना है पहले, तो उसका फॉर्मूला लिखना है एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट्स, market value of share before rights plus market value of right issue, market value of shares before rights plus market value of right issue divided by number of shares before rights plus number of shares of right issue। कुछ नहीं है, हिंदी है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ राइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ राइट इश्यू। ये ना एक वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट का मतलब क्या? अभी आपको पता था कि कंपनी में कितने शेयर्स थे पहले, पता ही नहीं है, तो आप इमेजिन करो क्या रेशियो में आ रहा है राइट। इमेजिन करो 4 शेयर थे कंपनी में पहले, ये रेशियो लो या एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर लो, बात तो वही है। इमेजिन करो 4 शेयर थे पहले, कितने? 4। और कितने राइट्स में है? 1। 4 शेयर थे, 1 राइट में आए, ठीक है। अच्छा, राइट से पहले भाव क्या चल रहा है? 150। सो व्हाट वाज द मार्केट वैल्यू बिफोर राइट? 150 इंटू 4, 600 रुपए का मार्केट का भाव चल रहा था सब शेयर का मिला के। 4 शेयर थे कंपनी में बिफोर राइट्स, आप सभी के पास मिला के कितने शेयर है? 4 शेयर इंटू भाव था 150, तो व्हाट वाज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट? 600 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ राइट। राइट क्या प्राइस पे ऑफर हुआ? 120। तो जिसने भी खरीदा उसने क्या भाव पे लिया? 120। कितना शेयर? एक राइट में आया ना 4 के सामने, तो 125 इंटू 1, 125 इंटू 1, ये राइट का भाव हो गया। प्री राइट क्या भाव था? 150 इंटू 4, 600 रुपए का मार्केट वैल्यू था। राइट का वैल्यू कितना था? 1 शेयर इंटू 125 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट प्लस राइट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रखना है आपको, तो डिवाइडेड बाय 4 बिफोर राइट प्लस 1 ऑफ राइट, 145। तो आपको यही ढूंढना है कि 600 बिफोर राइट का वैल्यू था, 125 राइट का वैल्यू था, तो अब मिला के 5 शेयर का वैल्यू कितना? तो 725 डिवाइडेड बाय 5, 145 पर शेयर आ रहा है। इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस, इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। मींस ये थियोरेटिकल प्राइस है। एक्स राइट प्राइस का मतलब कि भाई जैसे कंपनी ने ऑफर किया है शेयर्स राइट्स में, 1:4 के रेशियो में जो राइट आया, वो अगर सब लोग खरीद लेंगे, तो भाव क्या हो जाएगा? 150 का घटने ही वाला है, क्योंकि ऑटोमेटिकली थोड़ा शेयर्स बढ़ा है तो भाव घटेगा। समझा? ये कितने भी शेयर्स हो कंपनी में, मैंने इमेजिन किया इधर 4 शेयर है, सपोज 40,000 शेयर्स होते, ये भी आंसर आएगा। 40,000 शेयर्स होते, इमेजिन करो 40,000, तो भाव क्या रहता? 40,000 इंटू 150, और 40 के सामने कितने मिलते राइट्स में? 10,000, तो 10,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10, 50,000।
सब जीरोस कट होके वही प्राइस मिलेगा। तो whether it is 40,000 shares तो 10 मिलेगा राइट्स में, 80,000 shares तो 20 राइट्स में मिलेगा। Are you understanding? 1 lakh shares तो 25,000 राइट्स में आएगा। कितने भी शेयर्स हो, फॉर्मूला रिमेन्स। What is the formula for calculating X right price? It's a weighted average का फॉर्मूला, weighted average प्राइस का फॉर्मूला है वो। weighted average कैसे करते हो पता है ना? आपने 2 कुर्सियां 500 के भाव पे खरीदी, 3 कुर्सियां 600 के भाव पे खरीदी। टेल मी द वेटेड एवरेज प्राइस, आप कैसे करोगे? इसका प्राइस हुआ 1000, इसका प्राइस हुआ 1800, टोटल हुआ 2800 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज माय वेटेड एवरेज प्राइस। तो दैट इज व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग। मैंने 4 शेयर 150 के भाव पे खरीदे और 1 शेयर 125 के भाव पे खरीदा, तो 5 शेयर का भाव कितना? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्स राइट प्राइस। वेटेड एवरेज है, सिंपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4 शेयर जो ना कंपनी में एक ही शेयर होल्डर है, उसने 4 शेयर खरीदा, 4 शेयर 150 में खरीदा उसने, 1 शेयर 125 में खरीदा है, तो 5 शेयर का भाव कितना? टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, दैट इज कॉल्ड एज एक्स राइट प्राइस। इज दिस क्लियर? नाउ दिस तो यू गॉट, दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। एक्स राइट प्राइस क्या था? 145। थियोरेटिकल प्राइस है, इसलिए वापस बता रहा हूं, जरूरी नहीं है प्रैक्टिकली 145 पे आके भाव रुक जाए। इट मे कम डाउन टू 140, इट मे गेट स्टेबल एट 148। देयर आर अदर सिचुएशंस आल्सो। इफ द मार्केट्स आर बूमिंग, द क्राउड्स आर इनसेन, मेनिया चल रहा है मार्केट में, सबको बहुत भरोसा है कंपनी पे, ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर राइट 145, 146, 148, 155 भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। डिप्रेशन चल रहा है, जैसे अभी गिर रहा है मार्केट, 1.5 साल से गिर ही रहा है, कपड़ा चल रहा है मार्केट में, तो ये 145 वाला 135 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। इज इट क्लियर? पॉसिबल। अभी ये हुआ एक्स राइट प्राइस। आपको क्या ढूंढना है? वैल्यू ऑफ राइट। अब वैल्यू ऑफ राइट मैं आपको लॉजिकली समझा देता हूं, थियोरेटिकली हम बाद में उसका आंसर लिख देंगे। देखो लॉजिकली है ना, बहुत सिंपल है। मेरे को कंपनी से क्या भाव पे शेयर मिला? 125 में मिला। मेरे को नहीं खरीदने का, मेरे को किसी को खरीद के चिपका देने का, तो मैं वो कितना शेयर मिला मेरे को? 1 शेयर मिला। 1 शेयर लेगा 125 में और 145 में बेच देगा। 145 में I won't actually sell it for 145, maybe 143, 144, बट हम तो पूरा ही निचोड़ेंगे सर। वैल्यू ऑफ राइट मतलब पूरा ही प्रॉफिट हमारा ले लेंगे। वो नया बकरे को जो मिला 10 पैसा 20 पैसा 18 उसका बल, अपने को सोचने का कि पूरा अपने को मिल जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ राइट। तो मुझे कितना शेयर मिला राइट में? 1, वो मैं 125 में लेगा और कितने में हट निकाल लेगा? 145 में। दैट इज द प्रिवेलेंट प्राइस। तो मेरा प्रॉफिट कितना? 20 रुपया। दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ राइट। दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ राइट। सिंपल। इज इट क्लियर? अब हाँ, अभी वही आंसर हम लोग ये फॉर्मूला से लेंगे, क्योंकि आपको बुक में ये फॉर्मूला यूज करना है। ये मैं आपको लॉजिकल मेथड बताया, फॉर्मूला ये यूज करना है। इसमें भी सेम आंसर आएगा। बता दो, वैल्यू ऑफ राइट हम लोग का प्रॉफिट है, हम लोग का, इन्वेस्टर का प्रॉफिट है, कंपनी का नहीं है, इन्वेस्टर का प्रॉफिट है। वैल्यू ऑफ राइट फॉर्मूला से ढूंढना। व्हाट वाज द फॉर्मूला? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो इधर लिखते हैं वैल्यू ऑफ राइट। मैंने एक और चीज लिखा इधर, दिख रहा है? पर शेयर। वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर इज इक्वल टू व्हाट? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। व्हाट वाज कम राइट प्राइस? व्हाट इज एक्स राइट प्राइस? बराबर है सर, ये तो 5 रुपया ही मिला। हाँ, कितने शेयर्स थे आपके पास? 4। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे? राइट वाले नहीं, एग्जिस्टिंग कितने थे? 4। सो टोटल वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू 5 into 4, 20। आया ना 20? मिला ना 20? पहले ही बताया था ना 20 रुपीज कैसे आया। 125 में लिया, 145 में निकाल दिया। समझा? पक्का? एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स थे हमारे पास? 4। तो इंटू 4 एग्जिस्टिंग। हम लोग हर एक अपने शेयर पे जो हर एक प्रॉफिट आ रहा है वो, मतलब हम लोग बेच एक ही रहे हैं, राइट का ही बेच रहे हैं, उसका टोटल प्रॉफिट 20 ही आएगा,
बट ये ऐसा नहीं और ऐसा कैलकुलेट किया, हमने 4 शेयर पे जो फायदा हुआ वो देखा वो देखा है। तो पर शेयर 5 हुआ तो 4 शेयर का 20 हुआ। ये थोड़ा घुमा के है, ये दिमाग में बैठेगा नहीं बराबर से, डायरेक्टली रख देंगे एक्स राइट प्राइस। लेकिन कैलकुलेट ऐसे करना है, ठीक है। थियोरी में ऐसे करना, कैसे करना, कम राइट माइनस 150 माइनस 45, 5 इंटू 4 20। लॉजिकली कैसे सोचने का, एज एन इन्वेस्टर आपको कितने में पड़ा, कितना शेयर मिला, कितने में बेचा, पूरा ही निचोड़ दिया, उसको मिला नहीं मिला उसका बचेगा, अपन ने पूरा खा लिया। तो यह वापस थियरी है। रियलिटी में यू वोंट सेल इट एट 145, मे बी 143, 144 and he will get a profit of 1 or 2 rupees that way. Is it clear? So what I was saying, अपना प्रॉफिट कितना है, 20 रुपीज। आंसर 20 ही आएगा, लेकिन लाने का कैसे, कम माइनस एक्स करने का एंड देन मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? टेक अनदर एग्जांपल, you'll get it more clearly. All of you look at sum number 9. Look at 9 sum. 16 का होमवर्क चल रहा है वाले 16 हां देखो देखते हैं 40 जगह 40 पहले 9th sum देखो। All of you look at 9. This carries 5 marks. ये वेटेज 5 मार्क का आ सकता है, ये स्टैंडर्ड टाइप आता है इसमें, राइट। समझ में आ गया तो केक वॉक। A company has decided to increase its existing share capital by making a rights issue to its existing shareholders. The company is offering 1 new share for every 2 shares held to the shareholder. What is the ratio? 1:2. For every 2 it is offering 1. The market value of share is 240. भाव क्या चल रहा था बिफोर राइट, 240 रुपए, and the company is offering 1 share of 120 each. मतलब राइट का ऑफरिंग प्राइस क्या चालू है, 120। ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे रहे, so the shareholder would be interested. Yes, sometimes it is half, sometimes it is 1/3, depends कैसा कंपनी है, क्या नीड है पैसे का, उसके ऊपर। Calculate the value of right. What should be the X right price of the share? वापस सेम है, तो शुरू करो, पहला वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर इज कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, लिख दो। वैल्यू ऑफ राइट इज कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर इज इक्वल टू, हर एक सम में फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला भी और आंसर भी, यस यस फॉर्मूला लिखना। वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर इज कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। ओके, नाउ एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज इट, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ राइट इश्यू upon number of shares before rights plus number of shares of right issue. Basically आप weighted average price ढूंढ रहे हो वहां पे। ओके, देखिए कैसे करेंगे, कितने शेयर्स थे बिफोर राइट्स, पता है नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं पता है तो रेशियो से ही काम चलाओ। 2 ही शेयर थे, ऐसे सोच के चलो, 2 शेयर थे बिफोर राइट, क्या भाव के, 240 के लिए हुए थे, प्लस राइट में कितना आया, एक, क्या भाव पे 120, तो टोटल 2 + 1 क्या प्राइस हुआ 3 शेयर का, दिस इज 480 प्लस 120 अपॉन 3 which is 600 upon 3 which is 200 is what, X right price है 200 रुपया, am I right? भाव क्या चल रहा था मार्केट में, 240। Theoretically the price will drop to 200. Why? Because more shares are getting involved. कुछ होंगे बेचते आएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा तो भाव घटने ही वाला है। Nobody controls these prices. That's why I told you these are theoretical prices. How is the price determined? By demand and supply. Supply बढ़ जाएगा, theoretically price घट जाएगा, but market never works rationally. Reality में शायद ये भाव 200 भी ना हो, 190 हो जाए, 180 हो जाए, 210, 220, you never know. Okay?
theoretically the price will be around 200 rupees. Understood? Now how will you calculate the value of it? पहले logically सोच लो, मैं एक शेयर होल्डर है, मेरे को क्या भाव पे राइट्स मिला 120, कितना शेयर मिला एक, और वो मैं कितने में बेच देगा 200 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना 80 रुपए। 80 इज योर आंसर, सिंपल बनिए के जैसा सोच लेना। अभी उसको इधर रिकॉर्ड करने हैं आपने, कम राइट माइनस एक्स राइट, व्हाट इज कम राइट 240, व्हाट इज एक्स राइट 200, तो भाव कितना 40, बट दिस इज बेटा पर शेयर, दिस इज पर शेयर, तो अपने पास शेयर्स कितने थे एग्जिस्टिंग 2, तो 2 into 40 बोले तो 80, आंसर वही है 80 rupees is my profit, 80 rupees is my profit। नया भेजे में still any confusion, पूछो all clear? Look at sum number 10। अभी इसमें शेयर्स दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को वही अप्लाई करना है। देखो A limited company having a share capital of 25,000 equity shares of 10 each decides to issue right shares at the ratio of 1 share for every, अच्छा इधर एंट्री पूछ लिया है, ओके, decides to issue right share in the ratio of 1 for every 4 shares held at par value। What do you mean by par value? 10 रुपए, okay। Assuming that all the shareholder accepted the right issue and all the money was received, pass journal entry। जर्नल एंट्री पूछ लिया, बहुत सिंपल है, कौन सा एंट्री रहा है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री करना, खाली एक छोटा सा नोट करना, उसमें अपना नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लेना राइट्स का, तो वर्किंग नोट बना लो जैसे बोनस के लिए किया था, these are equity shares and these are rights, what ratio it is, 4 के लिए 1 ना, तो 25,000 के लिए कितना 6250 आ रहा है, बराबर है, हेलो, तो अमाउंट ऑफ राइट्स क्या रहेगा, क्या भाव पे आया कंपनी में 10 रुपए एट पार, तो 6250 into 10 is what, 62 500, हेलो, and what is the entry, bank to equity share capital 62 500, that's it, 5 modules being right issue of 6250 equity shares of 10 each in the ratio of 1 for 4 head। बोनस का किया था ना सेम, एंट्री क्लियर गाइस, हेलो, बैंक टू कैपिटल सिंपल, 1 सिंगल एंट्री, राइट का एंट्री में कुछ है ही नहीं ज्यादा। लुक एट सम नंबर, in the ratio of 1 for 4 head। Look at sum number 16, 16th sum, देखो 16th sum, वापस प्राइस पे आ जाते हैं, कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ 100 each, 16th sum 16 मिला। ये वाला किसके बुक में हुआ एंट्री, कंपनी को, कंपनी को हमेशा क्या मिलेगा, जो राइट का वैल्यू है वही भाव में शेयर्स का पैसा मिलेगा, मार्केट भाव, एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ राइट, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो अपने शेयर्स पे,
समझा? रिलायंस का शेयर मैंने 500 में खरीदा, 1500 में बेचा, क्या मुकेश अंबानी को फर्क पड़ा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर होल्डर कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, ठीक है? आप आपस में अपना मेले में खेल रहे हो, बिजनेस अपना चल रहा है. A company offers new shares of 100 each at 25% premium to the existing shareholders on 1:5 basis. What do you mean by that? 1:5 का रेशियो है राइट्स का, क्या दिमाग में? 5 के लिए 1 मिल रहा है, क्या भाव पे मिल रहा है? 125 का. और कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर इज व्हाट इज कम राइट प्राइस? एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस. राइट से पहले भाव चल रहा था कितना? 175. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट इज एक्स राइट? सेम चीज है, कम राइट माइनस एक्स राइट. ट्राई करो, ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ राइट. कैलकुलेट. देखो भाव था आपका 175, 1 फॉर एवरी कितना है? 5. तो 5 मेरे पास पहले से थे, प्लस 1 आया 125 का, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, ये कितना आ रहा है? नहीं ये ऊपर 875 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है 1000 by 6. ओके 167 66.7. 167 rupees is the X right price, right? Round up. 167 is the X right price. You get that? अब थोड़ा सा बनिया लॉजिक से पहले आंसर ढूंढ लो. आपको कितने में पड़ा राइट? 125. और कितने में बेचोगे खरीद के फटाक से? 160. कोटले का टिकट कितने का था? 10,000. बाहर डिमांड क्या चल रहा है? 15,000. आपका प्रॉफिट कितना? 5,000. तो ऐसा ये आपको कितने में पड़ा? 125. बाहर डिमांड चल रहा है 167, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 42. लेट्स वेरीफाई दैट. वैल्यू ऑफ राइट इज व्हाट? कम राइट माइनस एक्स राइट. 175 माइनस 167 बोले तो कितना? 8 रुपीज पर शेयर है ना? 8 रुपीज पर शेयर है. और अपने पास कितने शेयर्स थे? 5. तो 5 into 8 कितना हुआ? 40 पर शेयर. कितना ही था ना? कितना था? वो राउंड ऑफ की वजह से हुआ है. राउंड ऑफ की वजह से इतना 2 रुपए का फर्क है. दिस इज क्लियर? हेलो, ट्राई करो. 18th ट्राई करो. 18th वाला खुद से ट्राई करो. लंच પછી તો મળી જાય. होते ही रहेगा. सेल्फ स्टडी करना, अभी टाइम है, बर्बाद मत करो. 3 महीना 2 महीना अभी. तुमको लगता है लेक्चर कम है तो एंजॉय करने का टाइम है? सेल्फ स्टडी का पढ़ाई करके रखो. 2 महीना है, फिर लेक्चर आ जाएगा ना 6 घंटा 7 घंटा, टाइम कम हो जाएगा पढ़ने का. करो 18th वाला करो मुझसे. ट्राई 18th.
Guys, 18th वन मिला, 19 भी कर लो। 19 में कंपनी का बुक में एंट्री करना है, एक ही एंट्री है। एटीन करो फिर 19 करो फटाफट। क्या नहीं आज ये खत्म, आता है स्टार्ट नहीं करते। मतलब आज थोड़ा जल्दी सोचो तो विचार से मैं जल्दी फिनिश कर ही लो सब। તમે સમ નંબર લખી દો બોર્ડ પર। अभी कंबाइन करेंगे बोनस प्लस राइट। क्या है 18 का आंसर क्या है? 94 आया। 94 रुपीज वैल्यू, टोटल वैल्यू ना, टोटल वैल्यू ऑफ राइट्स इज 94 रुपीज। 18 सम मिला सबको 94। गेट दैट एंट्री ऑफ 19 सम। हो गया था। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। लॉजिक समझा? राइट का वैल्यू ऑफ राइट का आपको कितने में पड़ा, आपने कितने में निकाला, दैट्स योर प्रॉफिट, दैट्स द वैल्यू ऑफ राइट। नाउ सम नंबर 20 तीन पेज में डिवाइड हो गए। अरे यार सर मुझे सब समझाया नहीं। सम नंबर 20 एंट्री आएगा, एंट्री पे आ जाएगा। चलो अभी सुनो, लुक एट सम नंबर 20 स्टार मार्क करना। नाउ देखने में खाली बड़ा बैलेंस शीट है बट प्रॉब्लम इज मैनेजेबल इजी। लुक एट फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पार्ट, ऑथराइज कैपिटल दिया है बैलेंस शीट में, दिख रहा है? इज ऑथराइज कैपिटल ऑफ अपना यूज। जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तब अपने काम का है। तब मैंने एक चीज बना दिया था ऑथराइज कैपिटल की, लास्ट क्लास क्या बोला था, कुछ याद है? ऑथराइज कैपिटल ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इश्यूड कैपिटल से ज्यादा हो सकता है ऑथराइज, सॉरी कम हो सकते हैं ऑथराइज नहीं, ज्यादा होना चाहिए या उतना होना चाहिए। तो बोनस वगैरह से क्या होता है, शेयर्स बढ़ जाते हैं, राइट से भी शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो आपको ऑथराइज का लिमिट उतना बढ़ाना पड़ेगा। वो रिवाइज बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तब करेंगे। बैलेंस शीट के लिए आई थिंक इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछा है, तो अगर बनाने का होगा तो उसमें बढ़ा देंगे, चेंज कर देंगे। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल देखिए क्या दिया है, 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10। मुझे बताओ प्रेफरेंस पे कोई बोनस देगा या प्रेफरेंस पे कोई राइट इश्यू करेगा? उसका कम ज्यादा प्राइस रहता ही नहीं है मार्केट में। 3 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 each, 6 paid up. What do you mean by 6 paid up?
₹4 का कॉल बाकी है ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके पास जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है 2,75,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व है। क्या उसको टच करना है? कभी नहीं। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज लाइक एन इमेजिनरी प्रॉफिट। हाथ में अभी तक पैसा आया नहीं है, एसेट बढ़ा के हवा में प्रॉफिट दिखा दिए, वो कभी कोई चीज के लिए इस्तेमाल करने का नहीं। रियलाइज हुआ तो मतलब तब तक हवा है। P&L अकाउंट है 16 लाख। On 1st April 22, the company made a final call of 4 each on 3 lakh equity shares. What is the company doing? Is it making a call or giving it as bonus? Call. पैसा लो, खत्म करो. The call money was received by 25th April. Thereafter, on 1st May 22, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 5 shares held. बाद में कंपनी ने क्या डिसाइड किया, भैया हम लोग क्या देंगे? बोनस। फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है? तो फुल्ली पेड है। कौन सा बोनस है ये? फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप शेयर्स आर गिवन एज बोनस इन द रेशियो 1:5। कितने शेयर्स है अभी आपके पास? 3 लाख। कॉल के बाद फुल्ली पेड अप हो जाएंगे, वो 3 लाख पे कितना बोनस आएगा? 60,000 शेयर्स का, बराबर है। अच्छा आगे बढ़ो। It is decided there should be a minimum reduction of free reserve. वैसे भी वही free reserve minimum ही रहता है, पहला CRR फिर SP फिर CR और फिर free reserve आता है। Then on 1st June 22, the company issued right shares at the rate of 2 share for every 5 shares held on that day at the issue price of 14 per share. Base value क्या था? 10. Issue price क्या है? 14. मतलब ₹4 का प्रीमियम, बराबर 6। All the right shares were accepted by the existing shareholders and the money was duly received by 20th of June. मिला? Show the necessary journal entry. तो सबसे पहला किसका एंट्री करेंगे? फाइनल कॉल का। कब मंगाया? 1st April। डेट्स का ध्यान रखना। क्या करोगे एंट्री? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? कितने का मंगाओ बोलो? 12 लाख। कैसे मिला समझा? हेलो। Being final call due on 4 lakh shares, sorry 3 lakh shares at the rate of 4 per share. Being final call due on 4 lakh shares at the rate of 3 lakh share at the rate of 4 per share. Then equity 3 lakh। क्या प्रेफरेंस पे नहीं है बोनस, इक्विटी पे 3 लाख पे ये ना 3 लाख पे है, पीछे 5 लाख वो प्रेफरेंस है। ऊपर ऑथराइज है भाई, ऑथराइज कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। इश्यूड देखो, इश्यूड में एक प्रेफरेंस है एक इक्विटी है। अपना इक्विटी 3 लाख है, 3 लाख पर ही फोकस रखो, बाकी कोई काम का नहीं है। हेलो समझा क्या? अभी कॉल का डेट दिया, डेट का ध्यान रखना थोड़ा। क्या डेट पे पैसा है देखो, 25 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना? 12 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब मुझे बताओ कितने इक्विटी शेयर है? बोलो कितना इक्विटी शेयर है आपके पास अभी, और कितने का है वो? 6 का कि 10 का? 10 लाख। हाँ 6 का था,
₹4 मंगवाया, 10 का बनाया, समझा? 3 लाख शेयर अभी आपके पास, ऑथोराइज काम का नहीं है, इश्यूड देखो, 3 लाख शेयर है, 10 का हो गया, मिला। फिर कॉल के बाद क्या कर रहा है कंपनी? पढ़ो, बोनस, बोनस का रेशियो क्या है? वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट, बोनस क्या रेट से दिया? 1 for every 5, तो 5 के लिए 1, तो 3 लाख के लिए कितना? 60,000। हेलो, 5 के लिए 1, तो 3 लाख के लिए 60,000, इज दैट राइट? हेलो हेलो हेलो, समझा कि नहीं? बोलो बेटा। इसका दोनों एंट्री कॉस्ट पे देखो डेट दिया रहेगा, फर्स्ट में द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज योर रिजर्व। हाँ, कुछ नहीं दिया तो सेम डेट पे डाल सकते हो, या फर्स्ट में को बोनस का एंट्री करना है, वैल्यू ढूंढ लो, वैल्यू बोनस क्या रहेगा? कितने का शेयर है? 10 का है ना, मतलब 6 लाख, am I right? 60,000 into 10 is 6 लाख। अभी कौन से रिजर्व से उठाऊं मैं? पहले सीआरआर से कितना उठा सकते हैं? 240, सिक्योरिटी प्रीमियम 275, कितना हुआ? तो उतना चाहिए, 6 लाख चाहिए, 240 और 275 कितना हुआ? 5,15,000 हुआ, और 85 कहाँ से चाहिए? जनरल रिजर्व से ले सकते। तो सीआरआर डेबिट 2,40,000, then security premium debit 2,75,000, am I right? General reserve कितना? 85, to what? Bonus to shareholder कितना आएगा? 6 लाख, am I right? This is being bonus declared by capitalizing reserves. Being bonus declared by capitalizing reserves. What next? Come on. Bonus to shareholder account debit. To what? Equity share capital. Bonus to shareholder debit to equity share capital 6 लाख, बराबर है? This is being bonus shares issued in the ratio of 1 for 5 head. Bonus shares issued in the ratio of 1 for 5 head. बोनस खत्म। बोनस के बाद क्या है? राइट्स। अब टोटल शेयर कितने हो गए? 3 लाख की 3,60,000, तो राइट्स कितने शेयर को मिले? 3,60,000। इज इट क्लियर? ये कैच है, 3 लाख के हिसाब से मत करना, सब गलत हो जाए। तो बोनस के बाद शेयर हो गए 3,60,000, तो राइट्स भी उन्हीं को मिलेगा जिनके सारे शेयर जिनके पास हैं। तो वर्किंग नोट 2, राइट्स का शेयर ढूंढ लो, इक्विटी शेयर और राइट्स। आपके पास कितने, क्या रेशियो में आ रहा है राइट्स? आई थिंक 1 for every 5, 5 का एक है, 2 for every 5 के लिए 2 है, तो आपके पास कितना है? 3,60,000 है, तो कितना आएगा? हाँ, 1,44,000, और 10 का 14 रुपए में आ रहा है ना, तो 4 रुपया प्रीमियम है। और गम्मत देखो उधर, आपने 1 जून को राइट डिक्लेयर किया है और 20 जून को पैसा आया है, दिख रहा है? 2 डेट्स अलग है, तो आपको 2 एंट्री करना पड़ेगा। कैसे करोगे 2 एंट्री? एप्लीकेशन
फर्स्ट पार्ट इज व्हाट एप्लीकेशन, यानी डिबेंचर के वक्त किया था। तो पहले एंट्री करने का 1 जून को बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 1,44,000 इंटू 14 कितना आता है? 2016,000, 20,16,000. This is being application money received on कितना 144,000 shares at the rate of 14 per share, and then you transfer on 20th June. क्यों मैंने दो पार्ट्स में किया? दो अलग डेट था, तो पहले एप्लीकेशन ड्यू, फिर पहले रिसीट और फिर ट्रांसफर। अगर एक ही डेट होता तो एक साथ कर सकते हो। Then equity share application account debit to what? Equity share capital to what? Share premium या security premium कितना आएगा? This is to 20,16,000, इसमें से इधर कितना आएगा? 14,40,000 and 5,76,000 बराबर है? बराबर है? Application money transferred to capital and premium. Application money transferred to capital and premium. Is this clear? Got it? Clear? दो पार्ट्स में कर देना है, ये दो डेट्स अलग है। छह एंट्रीज थे, दो कॉल थे, दो बोनस थे, दो राइट्स थे। राइट्स का दो क्योंकि डेट अलग था, अदरवाइज एक साथ कर सकते हो। बीजे में एंट्री कैलकुलेशन क्लियर? पहला 3 लाख के हिसाब से, दूसरा 360 के हिसाब से। अज्यूम क्यों कर रहे हैं एप्लीकेशन पर? व्हाई नॉट फाइनल? पहले क्या मंगवाते हो हमेशा? एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल। अगर एक ही पार्ट में मंगवाने का था इसमें लिखा है जब मनी ऑन रिसीव्ड बाय 20 तो बैंक वाला एंट्री बाद में आएगा। एप्लीकेशन हमेशा बैंक वाला पहले, ट्रांसफर एंट्री बाद। एप्लीकेशन हमेशा बैंक वाला। 20 जून को कंबाइंड एंट्री में मार सकते हैं, सीधा 20 जून को बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम मारा कोई नहीं। बेटर है दो पार्ट्स में बोलो। Next one, please sum number 17. Amounts are in lakhs. 17 sum देखो. All the amounts are in lakhs of rupees, okay? 17 sum, सब lakhs में। अभी सब lakhs में, थोड़ा जीरो का ख्याल रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ऑथराइज कैपिटल कोई काम का है? नहीं, भूल जाओ। आप भी है ना, इधर जब जर्नल करोगे ना, अमाउंट इन lakhs करके कर सकते हो। सुना? तो आपको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऊपर इन लैक्स लिख दो और नॉर्मल सॉल्व करो। ओके, चलो 17 सम देखो। ऑथराइज कैपिटल है 20 करोड़, शेयर्स ऑफ 10 ईच, इश्यूड एंड सब्सक्राइब। आपके पास दो अलग अलग दिए हुए हैं। 12 करोड़ इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए के, 2 करोड़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। मिला? कॉल्ड अप अलग है, 12 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पर शेयर कॉल्ड अप। मिला? एंड 11% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप। अपना फोकस किस पे होना चाहिए? इक्विटी। कितने शेयर इक्विटी के इश्यूड एंड कॉल्ड अप पे? 12 करोड़ और 10 के हैं, और कितना कॉल्ड अप है? 8।
तो 9600 उधर दिख रहा है आपको, अमाउंट में 9600 है, पीछे प्रिंट हुआ है। इक्विटी का अमाउंट पीछे है 9600 मिला। कैसे आया? 12 करोड़ शेयर्स इनटू 8, 96 crores. Amounts are in lakhs. That's why it is 9600 lakhs. समझा? हेलो, आपका काम का आइटम क्या है उधर? ऑथराइज काम का है, प्रेफरेंस काम का है, भूल जाओ। काम का क्या है? इक्विटी। इश्यूड एंड कॉल्ड अप इक्विटी पे ध्यान दो। कॉल्ड अप इक्विटी कितना है? 12 करोड़ शेयर ऑफ 10 इंच, 8 कॉल्ड अप मिला। एक क्या पता चलना चाहिए, 2 रुपया बाकी है ना? पढ़ो। On 2nd April 2022, the company made a final call on equity of 2 purchase and the entire money was received by 22nd in the month of April. 30th April डाल देना, डेट नहीं दिया तो। कॉल का एंट्री करना है कि बोनस का एंट्री करना है? कॉल का। कितना शेयर पे कॉल मंगवाओगे? कितना रुपया? 2 रुपया। 24 करोड़ का कॉल है, समझा? हेलो, अमाउंट इन लाख लिखोगे तो कितना लिखोगे? 2400, 2400। इज इट क्लियर? ये लो। फिर 1 जून द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू बोनस शेयर्स, इश्यू टू द इक्विटी ऑफ बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 फॉर एवरी 5। 5 के लिए 2 तो 12 करोड़ के लिए कितना? 2.4 बराबर ना? एक मिनट, 5 शेयर के लिए 2 शेयर है तो 12 करोड़ के लिए कितना शेयर? 2.4 करोड़ आएगा। हेलो, मिला? बोलो बोलो क्या है? इसके पहले वाले सब में मनी वाज रिसीव्ड ऑन 20th जून ऐसा दिया, तो यहाँ पे तो आपने उल्टा किया। नहीं, उल्टा नहीं। एप्लीकेशन में हमेशा पैसा ऊपर ही आएगा, बाद में ट्रांसफर होगा। यहाँ पे तो ट्रांसफर टिल 20th जून, मतलब वो 20th जून तक इशू ट्रांसफर कर। किया। हाँ, मनी रिसीव मतलब वो दिन पे ट्रांसफर किया। आगे तो पकड़े। पिछला सम किया ना अभी, नया नहीं किया मैं। इसी दिन पे है ना, 20th जून पे आप एक ही एंट्री करोगे ना, बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, तो भी चलेगा। 20 जून को करना पड़ेगा। फिर 2 पार्ट्स में करने का, तो 1st और 20th को रिसीव और फिर ट्रांसफर। 1 जून और 20 जून, 20 जून तक पूरा ट्रांसफर कर दिया। ऐसा दोनों 20 जून को कर सकते, फिर कंबाइंड हो जाएगा, चलेगा। मिला क्या? 5 को 2 तो 12 करोड़ को कितना? 2.4 करोड़ मिला। 5 जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट भी बनाने का, बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ दो। 5.2 है ना, तो 40%, सॉरी 4.82, 4.8 करोड़, 4.8 करोड़, माय बैड। Not 2.4, it is 4.8 bonus. 4.8 करोड़ शेयर्स, ओके, ऑफ 10 each, 48 करोड़ का बोनस है। तो बेसिकली 4800 निकालने का है। आई थिंक यू कैन टेक 2100 आउट ऑफ CRR, बराबर से। अमाउंट थोड़ा ऊपर प्रिंट हो गया, एक मिनट। CRR इज नॉट 2100, CRR इज 1385। अमाउंट का लाइन कर देना जरा। CRR is 1385, security premium is 2100, नहीं 2100, general reserve is 1240 and PNL is 173, बाद में टोटल दिया। एक एक लाइन ऊपर है सब। अरे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वो एक ही है, that is 1385, security premium 2100, general reserve 1240 and PNL is 173। आपको 4800 चाहिए, 2+1 3485, 3485 हो गया, तो 1315 चाहिए आपको। तो जनरल रिजर्व से आप ले सकते हो 1240, PNL से आपको चाहिए
करो पास करो एंट्रीज 2 entries for call and 2 for bonus 4 entries quick ऊपर लिख देना अमाउंट इन लैक्स एक मिनट टोटल 7 जीरो विशाल सर हाँ 48 करोड़ मतलब 4,800 लाख हाँ बरोबर ये लिखा तो है ये क्या है निजाम का डिस्ट्रीब्यूशन इधर 75 कितना का दिले बात आज अमाउंट बोलो क्या हुआ आंसर इज देयर ऑन द बोर्ड चेक आपको आई थिंक कंफ्यूजन वो lakhs crores में हो रहा है तो ऊपर इन lakhs लिख के रख दो जैसा है वैसे ही लिखो इन लाइन्स लिख के फिर ये सभी अमाउंट्स लिख दे ये सब अमाउंट टेंशन ही नहीं करोड़ को लाख में कन्वर्ट करना है तो क्या करने का 2 जीरो लगा देने अपने को 12 करोड़ इंटू 2 24 करोड़ का कॉल था 24 करोड़ मतलब क्या 2400 लाख का कॉल मंगवाया अभी रेशियो क्या है बोनस का 5:2:5 5 के लिए 2 मिला तो कितना है 4.8 into 10 48 करोड़ वाला 4800 lakhs 4800 कहाँ से निकालेगा 1385 पूरा सीआरआर खाली किया पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम खाली पूरा जनरल रिजर्व खाली और पीएनएल से 75 हाँ 4800 तो ये होगा ना तो रिजर्व का अमाउंट है ना ऊपर हो गया है शिफ्ट दिखा क्या आपको क्या हुआ मेरे को ऐसा नहीं होती कितने दिन से पड़ा
We have done 15 हो गया। 8 सम करो 8 करो 8 पहले 8 करो फिर 7 करो और फिर 11 करो। एकदम ध्यान से करना, कैलकुलेशन डेट्स परफेक्टली। बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ देना, वो आज नहीं करेंगे। नॉट टुडे। 8, 7 and 11 quick guys, go it। बैलेंस शीट है हेलो गाइस quick बैलेंस शीट बाद में करेंगे। बैलेंस शीट जिसमें पूछा है ना जगह छोड़ दो, सब पढ़ना। Guys, please don't waste time. Quick. 8, 7, 11. सर बोनस का एंट्री 20 तारीख है 8 सम में 7 हाँ 20। वासु भाई ऑथराइज 20 नहीं 30 अप्रैल दिया है। बैलेंस शीट हाँ बट आफ्टर बोनस इशू हो 30th अप्रैल। बोनस का डेट 30 अप्रैल डालना, दिया है नीचे। कॉल का डेट 1 और 20 है। एक जन कोई तो नहीं है, सीट है फॉर अ चेंज, सीट है, लक्ष्य भी आया। देखो आजू बाजू कौन गायब है मुंडी। ये चालू है ना रिकॉर्डिंग? ईशान शर्मा आया शर्मा जी का बेटा भी। जाबक नहीं आया ना? नहीं जाबक नहीं आया। वो सर वो पिंक हो गया है। बुर्ला में पिंक कर दिया। दक्ष को गायब भी कर दिया। मुंह थोड़ी लगा तो स्कोर शामिल
चार करोड़ 40 करोड़ 4 करोड़ into 10 oh my આપણે ખાલી Thank you, sir. ऑन थ्री तीनों 5.15 तीनों हो गए वेट Why wait? नहीं हुए पाँचों बैलेंस शीट करावी जैसे सर वेट वेट देवम देवम सर आपने गेला हो क्या किया नहीं कह रहा पूरी गेला की नहीं खेला खेला हेलो गाइस नशे का असर है भैया सर होने नहीं दे नहीं थोड़ा खेला ना आप किया पूरी थोड़ी अभी तो सर का कितना भी है 2 क्लास बट बाल भी घर पे नहीं गए चैन में लोग के साथ घूमना था तो कुछ हुआ नहीं घर पे जाके लेटते तो होता जो होगा था सर सही है Tomorrow I am going to start with redemption of preference share, okay? Another important topic.
This weekend you will be having a test of 3 topics: single entry, bonus and redemption of preference. ये weekend में. That's why I'm telling you, बढ़ के रखो. अरे क्या करो? तीनों एक साथ हो गए। हाँ. अभी खाली सीए है, कुछ नहीं है, पढ़ाई करो. और उसी बात में ओसी का बुक फेंक दिया रहेगा. ये देने का, फेंकने का नहीं. 20 में नहीं डालने का, बुक बैग में दे देने का. ये लास्ट टाइम तो लिखते रहते आदमी, क्लास निकल जाएगा तब तो लिखते रहते. वो आदमी करा मेरे को 1 मिनट. 8 सम आज मॉड्यूल सब गो थ्रू कर लेना, बोनस का भी और सिंगल एंट्री का भी. मॉड्यूल सम्स बराबर से गो थ्रू करना विद ट्रू और फॉल्स, बोनस एंड सिंगल एंट्री. 8 का आंसर चेक कर लो. 8 का आंसर फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल 5,40,000 बराबर. हेलो, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल 5,40,000 मिला. 540 है ना. हेलो, एंड बोनस का कितना शेयर आ रहा है? 67,500 इंटू 10, 6,75,000. 120 CRR से लेने का, 75 सिक्योरिटी प्रीमियम और PNL 4,80,000 ले लिया पूरा फर्स्ट क्लास. तो CRR प्रीमियम, PNL 4,80,000 टू बोनस एंड बोनस टू कैपिटल 6,75,000 सॉर्टेड. 7th सम हो गया सबका. 7th वाला हो गया क्या? सेवेंथ वाला पहले कॉल मंगाया है 20 करोड़ का, मिला. फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल 20 करोड़ बराबर. 245 है, मतलब 4 करोड़ का बोनस है, 4,000 लाख. You can take 1,485 out of capital redemption, 2,000 out of security premium, and 515 out of general reserve. So CRR security premium, general reserve में 515 to bonus, bonus to capital 4,000 lakhs. That's 4 crore, 40 crores, sorry. बराबर है? 4,000 lakhs, 40 crores. 515 out of general reserve. 11 भी हो गया. 11 में 6 एंट्रीज है, I think. 11 6 entries you will have. 11th how many are still doing? कर लो 11. 1 मिनट रुको यार. सर आपने तो बोला था जल्दी हो जाएगा तो जाओ. हाँ तो सबका हो जाएगा. 2 मिनट. कितना जल्दी है देखो, आज तुमको आधा घंटा जल्दी हुआ. 2:45 तक था, 2:20 को फ्री हो गया. आज ही क्या, आज मॉड्यूल देख के रखना. सिंगल एंट्री बोनस दोनों का. रिडेम्पशन के बाद तुरंत टेस्ट आएगा. प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन 2 लेक्चर मैक्स 3 लेक्चर खत्म. हाँ तो वीकेंड तक टेस्ट है 3 चैप्टर का पक्का. सिंगल एंट्री बोनस एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर.
पढ़ के रखना, मॉड्यूल पूरा कवर करके रखना। पीछे के 2 पेज 11th का चेक किया? See 11th sum, there are 6 entries. पहला 2 entry, equity share final call to capital, bank to final call 8 lakh rupees. Is that right? Then I think bonus is 1:4. मतलब 1 लाख शेयर का बोनस है, 10 लाख का अमाउंट है, बराबर? हेलो, 240 out of CRR, 275 out of securities premium, and 5,15,000 सीधा PNL से उठाया। 5,15,000 हुआ, 485 PNL से लिया, बराबर है? CRR 240, सिक्योरिटी प्रीमियम 275, PNL 485, तो बोनस पे शेयर टू कैपिटल 10 लाख। फिर राइट्स दिया, राइट्स इज 245, मतलब कितना राइट्स आएगा? आई थिंक 20 लाख, बराबर है? 2 लाख शेयर का राइट्स है ना, 20 लाख रुपए का, बराबर है ना? 20 लाख, हाँ, मतलब फेस वैल्यू 2 लाख इंटू 12, 24 लाख, 4 लाख का प्रीमियम है। एंट्री विल बी बैंक टू इक्विटी शेयर, वापस 2 डेट है ना, तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना? 24 लाख, एंड देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम 24 लाख, 20 लाख और 4 लाख, बराबर? हेलो, चलो, you can leave nothing for homework, just revise module।